Hello and good morning, everyone. My name is Dipendra, and I welcome you all on the behalf of Creative Edge. In this final lecture or series of UCEED Marathon, we will be looking at the various topics which you should revise before going for the exam. Not just that, we shall be discussing certain questions which are quite essential as far as your exam is considered. So without further ado, let's get started. First of all, we shall be discussing the questions, and then we'll be addressing, or rather discussing, or I'll be explaining all the topics which you have asked for. So let's get started without further ado. I hope everyone is able to hear me properly and my voice is clearly audible. That's a very good morning, Ishan. Thank you so much. So let's get started without any delay. I hope whatever I'm sharing on the screen is properly visible to all the participants, and the fonts are very properly readable. If not, let me just zoom it in a little so that it becomes visible to you all. Give me a second, everyone. I hope the screen is very properly visible to all the participants now, and I think it's going quite smooth. Great. So let's get started. Here in this question, we are told or asked to figure out that this is a visual given to us. I hope this question we had discussed in the last YouTube live, I believe. Still, if you didn't understand in the last YouTube live, I shall be readdressing this in this lecture. Well, look at the screen, everyone. If you pay attention to the shape, we are asked to figure out the region of the shaded area. This is the shaded regions area we are supposed to figure out. Now, this is clearly a very simple question. What you need to do is connect these two dots with this straight line. Same you are supposed to perform here, and the same if you were to perform here, you would be getting a triangular shape. Not just a triangular shape, this is clearly an equilateral triangle. Why am I saying that? Please understand, whatever shape was out of this region, or when you create this straight line, whatever part of the shape was out of this equilateral triangle, that can be fulfilled or supplemented in this void space. The same can be done from here. This particular extra or additional part of this region can be filled here, and this void space can be filled here. Same when you take this part out or cut it out from here and you place it here, this void also can be filled very properly. The only point I'm trying to make you understand is that this shaded region is nothing but basically an equilateral triangle. Now, when you are going to solve this question, one more thing you need to observe, that this particular circle has been divided into 6 equal parts. I hope you all can see that. So a circle has total 360 degrees, a circular revolution, a complete circular revolution. So when you divide 360 by 6, because this entire circle has been divided into 6 equal parts, hence the angle made by this equilateral triangle is going to be 60 degrees, and that's why I was saying or explaining or committing or wanting to explain that this angle is 60, and hence this triangle should be considered an equilateral triangle. One more reason we have to prove that this is an equilateral triangle, because this and this is nothing but the radius of the circle, and if these two are the equal sides, they will subtend the equal angle on the third side. Hence, these other two angles ka sum should be 180 minus 60, which is 120, and 120 when divided by 2 results into 60, 60 each, which means that this clearly is an equilateral triangle. Now, I hope this we have discussed a lot many times during our year-long program or in our live classes or almost at the both these centers. So I shouldn't say that I hope you all know this, that the area of equilateral triangle is nothing but root 354 times a square, or the side square. Now what is the side? Side is clearly, this is the diameter. Mind you students, this is not the radius, this is the diameter. So if you were to figure out the radius should be half of this 12, which means the radius should be nothing but 6. So this a square should be the square of 36, which means the answer should be root 3 by 4 times a square. 6 square is clearly 36. 4 ka 9 times is 36. Now what you need to understand, you will not be entitled or allowed to write this answer as 9 times root 3. Root is clearly not a considerable input type value which you can feed in that input type box which you are given in this online UCEED or SEED examination. So what you're supposed to do is take the value of root 3 as 1.732 and then multiply it by 9 and then figure it out up to the 2 digits after decimal. I repeat, डॉट या डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आपको इसका सही वैल्यू या सही आंसर लिखकर आना है. Please remember that. With that, I hope this particular question was clearly understood by everyone. This I believe we had discussed, in the last YouTube live as well. This also I did explain in the last class. We shall be addressing this question, everyone. This is again a very interesting question. Pay attention. A very simple and a little tricky question it is. So if you pay more attention to the
shape we are asked to fit here in this particular rectangle box. How are you going to do that? Let's learn that very quickly, everyone. See, if you look at this, fish kind of a shape, and when you're asked to place these fishes in this rectangular box, we are asked to maximize the number of fishes that can be fit in this rectangular area. And the rectangular area is nothing but 18 by 18.5 times 22. I hope you are getting that. Now, when you place that fish here, I hope you need to realize that this fish can be placed somewhat like this. I'm not drawing it very properly, but I hope you are able to understand this. Well, what do I mean by that? Please understand, this fish has a particular height, and the height of the fish we are clearly given. See, if I just tell you the height of the fish, this length is 1.5 and this length is also 1.5. So shouldn't I say that the height of the fish should be 3 centimeter? I hope you are able to process that data. That's good. Ashaknil Tadukar, that's brilliant. Now, when this 3 centimeter, and this clearly has a certain length, this fish has a certain length which is clearly 5.5. So when you place these fishes one by one, one after another, I will be placing another fish here. I'll be placing another fish here. So basically, a fish having 5.5 length, I'll be placing here along the length. ऑल्दो इसको आप ऐसे भी ऑर्डर में अरेंज करके देख सकते हैं, और जो भी नंबर आपको मैक्सिमाइज फिश नंबर बना के दे रहा है, दैट शुड बी योर आंसर. तो ध्यान से देखिए क्लास, जब हम इसे हॉरिजॉन्टली रखने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग. 18.5 is the total length और एक फिश का लेंथ is 5.5. So I am going to divide 18.5 by 5.5. I hope you are able to process that. And 5.5 का डबल is 11 and 11 का डबल is clearly, I hope we are solving it correctly. Yes. 5.5 का double is 11, 11 का double is 22, which means I'll not be able to arrange 4 fishes here. So shouldn't I arrange these fishes in this manner? क्योंकि मुझे यहाँ 22 clearly दिख रहा है. So शायद वो perfectly set या adjust हो जाएगा and I'll be left with no gaps or no spaces. That's my concern basically. So instead of arranging it horizontally, I am going to arrange it vertically. I hope you all have realized to avoid, to avoid wasting of any space which we are provided, I am doing that. So how am I going to arrange this now? I will be arranging these fishes in this manner. I hope you are able to understand this. So this is how I'm going to arrange these fishes. Now clearly, this is clearly going to be the length जो कि अब height consider होगी जो कि 5.5 थी, और ऐसी total length I am having. I am really sorry. The thing which we were doing was absolutely correct. I didn't look at this properly. The length we are told is clearly 22 centimeter. I didn't read it properly. I am really sorry. This should be the height. So I should be arranging it along with the length basically. एक फिश का लेंथ है 5.5 और टोटल लेंथ वी आर हैविंग हियर इज 22 सेंटीमीटर. तो अगर मैं टोटल लेंथ यहाँ पे अरेंज करता हूँ तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग. 22 व्हेन डिवाइडेड बाय 5.5, 5.5 का डबल इज 11, 11 का डबल इज 4, 22, which means 5.5 लेंथ की मैं टोटल 4 फिशेस यहाँ पे रख पाऊंगा. इफ यू आर एबल टू इमेजिन, इफ यू आर वांटिंग टू इमेजिन, ऐसी 2, 3 and 4 fishes I will be able to arrange. But not just that, are you realizing with the help of this I will be arranging, or I will be able to utilize this space as well. In this space too I would be able to arrange 4 more fishes. Now my only concern here is I would be utilizing this much height, and this much height is nothing but ये जो fish था इसका जितना length था, और एक और row जो हम fish की बना रहे हैं उसकी half length और उसकी half height और utilize हो रही है. So basically जो भी ये height है हमारे पास, this is 1.5 and 1.5 का double is 3 और 3 के साथ 1.5 टाइम्स और, क्योंकि मैं फिश की हाफ लेंथ और यूटिलाइज कर रहा हूं, क्योंकि फिश का अपर पार्ट आई एम एबल टू एडजस्ट हियर इन दीज अवेलेबल ब्लॉक्स. सो बेसिकली आई एम यूटिलाइजिंग टोटल 4.5 यूनिट्स ऑफ लेंथ along with the height, and I am able to create 2 rows. I hope this much data is clearly understandable. And with that, when you proceed further, please understand 4.5 is one row which contains 8 such fishes. So how many rows will I be able to create? That should be 4.5 कितना टाइम्स 18.5 को डिवाइड करेगा. 4.5 का डबल इज 9, 9 का डबल इज 18. तो shall I say I should be able to make 4 more rows along with the height? And when you are able to do that, one row had total 8 fishes and we are able to create 4 more rows. Shall I say 8 into 4? 32 fishes we should be able to arrange. I hope this should be the answer. Everyone understood that? I hope there is no space left and I have utilized the complete space properly, right? 4.5 का डबल इज 9, 9 का डबल इज 18. सो 4 रोज वी आर एबल टू क्रिएट, और एक रो में टोटल हम 8 फिशेस अरेंज कर पा रहे हैं. So 32 should be the correct answer. Let us proceed further, everyone. This is again a very interesting question. The figure of this question is given on the second page. I shall be showing you very soon. So first of all, let's read the data, or rather, first of all, let me show you the image here. Well, basically here is a lizard, and lizard follows a certain path.
It follows a certain path and it reaches a certain distance and it reaches a certain point. Now, where does it reach? That's the point we are supposed to figure out. Now, if I were to read the question, look at the screen, everyone. What are we told? That given below is the intersection of a triangular prism with a cylinder. So we have this triangular prism, although in the examination, the image will be properly visible to you and you will not have to scroll it down like this. कभी कभी शायद थोड़ा हो जाए, but थोड़ा सा इसको ऐसे रीड करना होगा because वो दूसरे पेज पर जा रहा है. And the sides of the isosceles triangle. So this is the isosceles triangle ABC. So this ABC is an isosceles triangle जिसका हमें sides का length I think are given. दोनों equal sides are having 5 centimeter और जो third unequal side है that has length 6 centimeter. The diameter of the cylinder is 5. So अगर मैं डेटा लिखना चाहूँ, so this length is clearly कितना 5. I hope you are able to understand this. This length AC is clearly 6. और हमें सर्कल का डायमीटर वी आर गिवन. सर्कल का डायमीटर इज क्लियरली वी आर टोल्ड इज 5 सेंटीमीटर. तो सर्कल का डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है, चले से ये D to E, ये जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर है सर्कल का, वहाँ से सर्कमफेरेंस तक इट शुड बी द रेडियस विच इज 2.5. थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. वेयर द विड्थ ऑफ दिस दिस डायल और दिस क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर. तो ये जो विड्थ है, ये जो हमें डायल दिखाया गया है, इसका विड्थ है 2 सेंटीमीटर. आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस दैट मच डेटा. Now proceeding further, वो क्या कह रहा है? The total length of prism is 5.4. One more thing we are told that ये जो prism है, इसका ये वाला जो length है, this is considered to be the length, क्योंकि ये एक हमारा isosceles triangle था, तो this length is going to be 5.4 units. Now, what are we asked in this question? What the fish does is, assume that the cylindrical face of a dial of a clock with D at its center. Imagine a lizard start moving from F, which is midpoint of AC. So we are told one more thing, that F is nothing but the midpoint of AC, hence this should be F should be equidistant from A and C. So this should be 3 and 3 each. Now, when you proceed further, बहुत ध्यान से देखेंगे. And it travels alongside the solid surface to catch a fly sitting on the periphery of the dial at 2 o'clock position. So ध्यान से सुनेंगे class. This clearly is 12 o'clock. So ये 1 o'clock होगा. And this point which I have highlighted with the red dot should be the 2 o'clock position. तो lizard basically does nothing, but lizard क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे. अगर मैं लिजार्ड के पाथ को ट्रेस करूँ, सो लिजार्ड एफ बी बी डी और डी ट्रैवल करती है. सो व्हाट लिजार्ड डज इज, पहले इट ट्रैवल्स एफ बी डिस्टेंस. आई होप यू आर सीइंग दैट. एफ बी के बाद बी डी एंड डी ई इट डज ट्रैवल. तो बी डी एंड देन डी ई. आई होप ये डिस्टेंस आप बहुत आसानी से ज्योमेट्री के बेसिक्स यूज करके निकाल सकते हैं. एंड देन इट प्रोसीड्स टू टारगेट अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द डायल. तो पेरिफेरी पे चलते चलते इट रीचेस दिस 2 o'clock. आई होप इतना डेटा सभी को समझ आया. अगर बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल लेंथ व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय दिस लिजार्ड. बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग. दिस क्लियरली इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स के वर्जिंग पॉइंट से, जो वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉट जस्ट द मीडियन बट इट बिहेव्स लाइक द एल्टीट्यूड एज वेल. सो दिस इज गोइंग टू बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और अगर ये लेंथ, आई होप आई नीड नॉट डिस्कस दिस again, we have been discussing it a lot many times, that 3 4 5 is one of the Pythagorean triplets which UCEED loves a lot, or UCEED is quite fond of this Pythagorean triplet basically. So this distance is going to be 3. I hope we all have this distance which is clearly 5. So if this hypotenuse is 5, the base is 3, the perpendicular should be having length 4. So अगर मैं BF या FP निकालना चाहूँ, so that is clearly having length 4. आई होप आई नीड नॉट डिस्कस दिस कि ये जो डायल था इसका लेंथ अगर 2 है और ये पूरा लेंथ 5.4 है, तो अगर मैं बी डी लेंथ निकालना चाहूँ तो इट शुड बी 5.4 माइनस दिस 2, क्योंकि डायल की लेंथ के अलॉन्ग ये पैरेलल जा रहा है. तो 5.4 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँ, सो दैट शुड बी 3.4. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच डेटा. दैट्स ग्रेट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप पार्टिसिपेटिंग एंड कीप आंसरिंग. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द आंसर्स करेक्टली. ओके, देन what I do next is, अगर मैं D से E तक ट्रैवल करूँ, so D से E तक I hope you are realizing this is clearly nothing but the radius. और अगर इस पूरे डायमीटर का लेंथ था 5, तो रेडियस शुड बी 2.5. तो इतना हमने निकाला. अब अगर ध्यान से हम देखें, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर, बहुत ध्यान से नोटिस करिए एवरीवन. इट ट्रैवल्स ये वाले आर्क के अलॉन्ग दिस लेंथ. बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग. दिस क्लियरली इज 2. अगर मैं इसे थोड़ा सा हाइड करूँ और अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये जो लेंथ है ये क्लियरली 3 था, ये 4 होगा और ये 5 होगा. सो 2 से 5 तक. आई होप यू रियलाइजिंग एक आर का जो ब्लॉक होता है या 5 मिनट्स का जो ब्लॉक होता है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है, एंगुलर लेंथ, एंगुलर डिस्टेंस या एंगल की जो वैल्यू होती है उस आर्क की, वो 30 डिग्री होती है. तो ऐसे मैंने 3 ब्लॉक्स ट्रैवल किए हैं, तो हम टोटली और कंप्लीटली ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्रीज. अगर पूरे 360 डिग्री सर्कल की मैं सर्कमफेरेंस निकालूं, पूरे 360 डिग्री सर्कल की मैं सर्कमफेरेंस निकालूं, सो दैट इज 2πr. सो यूनिटी रूल लगा के अगर मैं 90 डिग्री सर्कल के आर्क की, 90 डिग्री वाले मतलब आर्क की अगर लेंथ निकालूं, सर्कमफेरेंस या आर्क की लेंथ निकालूं, सो दैट शुड बी 2πr/4, क्योंकि 90 डिग्री इज 360 का 1/4. बेसिक रेशियो का प्रिंसिपल आई एम यूजिंग. सो विद दैट दिस शुड बी 2 बाई, मतलब आई होप आपको अगर कुछ डिस्टेंस दिया गया है 22/7, वरना आप
तो क्लियरली 3.14 यूज करेंगे. सो विद दैट द लेंथ वी आर गेटिंग हियर इज पाई आर बाय 2. और अगर आप थोड़ा और डेटा यूज करें तो बहुत ध्यान से सुनिए. पाई वी आर यूजिंग एज 3.14, आर वी आर गिवन एज 2.5, एंड इसका हमें करना होगा हाफ, तो विल डू द हाफ ऑफ इट. आई होप यू कैन डू दिस फर्दर बाय योरसेल्फ एंड गेट द आंसर बाय योरसेल्फ. दिस मच कैलकुलेशन आई होप आई नीड नॉट teach. With that, we are solving the next question. This kind of questions we have done a lot many times, so I'll be skipping this category of questions. With that, let me proceed further. Well, this is also one of the very interesting or a brilliant question based on geometry. So today's agenda I have is nothing but most of the questions will be based on geometry, and we'll be figuring out the various area and surface or shapes related questions. Okay, so look at this question, everyone. We are told in this question that shown below, on the left are two wooden pieces joined together. So this is a wooden piece and this is another wooden piece which is joined together. The joined wooden block is cut at two places AA. So ये AA और BB के along cut किया गया है at 45 degrees. Now that is very crucial data. This clearly is an angle made by 45 degree. तो I hope you are realizing ये angle भी 45 degree होगा क्योंकि AA and BB are clearly पैरेलल विद ईच अदर. तो अगर वो एक ही लाइन पे सेम एंगल सबटेंड करेंगे. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम तो ध्यान से देखिए. एज शोन इन द इनलार्ज्ड फिगर ऑन द राइट. नाउ व्हाट आर वी आस्क्ड, कैलकुलेट द एरिया शेडेड इन द ब्लैक. बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हो सकते हैं. व्हाट यू कैन बिगिन विद दिस, आई होप यू आर रियलाइजिंग ये जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ वी आर गिवन इज 7. और अगर मैं इसके टोटल इक्वल ब्लॉक्स देखूँ तो एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक यहाँ से आ रहा है, थर्ड ब्लॉक वी आर सीइंग फ्रॉम हियर, फोर्थ block we are seeing from here. This is going to be the fifth block. This would be the sixth block, and this is the total 7 blocks. So if these are the total 7 blocks, shall I say these 7 blocks are divided into 7 equal parts, which means जो एक wooden block की जो total width है, that is 1 centimeter. Okay. With that, when you proceed further, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग. This is clearly not having or not occupied here. So अगर मैं इसे थोड़े से कुछ parts से arrange करने की कोशिश करूँ, I hope this color is visible to all the participants. If not, let me just choose another color here. So let's use this as well, everyone. So when you draw this here or when you continue this further, shall I say I should continue this in this manner. इसे थोड़ा और continue किया तो यहाँ तक, और I don't need to do all this. इसको थोड़ा और आसान. Well, please understand, geometry के questions काफ़ी आसान होंगे and there can be multiple ways to solve these kind of questions. Priyam is saying sir पंजाबीज वाला question करवाना है. Okay Priyam, पंजाबीज वाला question. यस वो हम कर चुके हैं प्रियम, तो विल नॉट बी एड्रेसिंग दैट. वो वही ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करें तो बेहतर है, तो उसी को हम उसी पे रिलाई करेंगे. विद दैट ध्यान से सुनिएगा. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ध्यान से सुनेंगे. शैल आई से अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ, अगर मैं एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ और अगर मैं इससे थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ, सो आई डोंट थिंक इसके आगे कुछ जाने की ज़रूरत है. एक लाइन आप परपेंडिकुलरली यहाँ भी ड्रॉप कर लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो. अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली मैंने इसे अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया है. अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स में आई हैव डिवाइडेड इट. आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट. प्राची मैम, जस्ट अ स्मॉल इंटरप्शन ऑन स्टूडेंट्स. थोड़ा सा विंडो को खोल देंगे थोड़ा सा. Thank you. बस thank you. Now look at the screen everyone. This clearly is going to be a 45 degree angle क्योंकि पूरा 90 degree था. This was a rectangular wooden block. तो this would be a 45 degree angle. Well, when you continue further, I hope I did not tell you, अगर आप ब्लॉक्स को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ काउंट करने की कोशिश करें तो 45 डिग्री के अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, तो आई होप आई नीड नॉट टेल यू 45 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेसिकली एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है. व्हाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये एक 45 डिग्री एंगल होगा, ये एक 45 डिग्री एंगल होगा, तो 45 डिग्री के इक्वल एंगल्स इक्वल लेंथ की साइड क्रिएट करेंगे, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मैं ये लेंथ पता कर लेता हूँ तो मैं ये लेंथ भी पता कर लूंगा. आई होप आई नीड नॉट टेल यू दैट. ऑन द बेसिस ऑफ सेम थॉट और सेम कंसेप्ट हमें इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया फिगर आउट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि ये 1 by 1 के स्क्वायर वाले ब्लॉक्स का हाफ है. तो अगर पूरे स्क्वायर की एरिया पूछा जाता तो 1 होता, तो इस हाफ सेमी स्क्वायर या इट्स बेटर दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसके अगर एरिया हम निकालें तो दिस इज हाफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो ऐसे इन छोटे छोटे ब्लॉक्स के जो एरिया आपने निकाले वो 1 है. जैसे आप इस लेंथ को देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये लेंथ 2 हो जाएगा, और इस तरीके से आप इन लेंथ्स और इन एरियाज को भी फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन सबकी विड्थ जो है वो 1 है और इन सबकी लेंथ्स थोड़े से ऑब्जर्वेशन से आप फिगर आउट कर सकते हैं. अगर आप इक्वली डिवाइड करना शुरू करें तो कितनी कितनी लेंथ के वो ब्लॉक्स बन रहे हैं. वेल विद दैट अगर आपके पास सारी साइड्स आ गई हैं तो आप बहुत ईजिली पूरा एरिया निकाल पाएंगे एंड इट विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. Proceeding further, this is a very interesting or category of questions. I hope ऐसे questions आपने try किए हैं. I request you all to give this question a try, then we'll discuss this question together.
Now, if we solve this question, everyone, please understand, the very simple idea or thought behind solving this question is quite simple. I hope most of the students are quite aware of this question, that whenever cylindrical shape is unfolded, it becomes a rectangular sheet. और इनवर्स भी इसका ट्रू है कि अगर एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया जाए तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करता है. आई होप यू आर रियलाइजिंग. अगर एक रेक्टेंगुलर शीट को मैं फोल्ड करूँ तो जो इस सिलेंडर की हाइट है वही इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ होगी, और जब वो फोल्ड होके कहीं से किसी पॉइंट तक ज्वाइन होगा तो कैन आई से वो जो सर्कल की इस सिलेंडर के टॉप के कर्व्ड एरिया की, कर्व्ड पार्ट की जो सर्कमफेरेंस होगी वो कुछ नहीं होगी, वो सिर्फ ये हमारे रेक्टेंगल की लेंथ होगी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. वेल विद दैट, अगर मैं बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ तो क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए. एन एंट वॉक्स अलोंग अ हेलिकल पाथ. आप प्लीज एक बात समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए. आपके पास अगर शीट है तो आप ये ड्रॉ करके देख सकते हैं. इफ यू हैव अ रेक्टेंगुलर शीट विथ यू, और अगर आप उस रेक्टेंगुलर शीट पे एक डायगोनल ऐसे क्रिएट करते हैं और उस रेक्टेंगुलर शीट से आप अगर सिलेंडर फॉर्म करते हैं बाय सिंपली रोटेटिंग इट, इस वाले डॉट को इस वाले डॉट से ज्वाइन करके, तो ये जो आपने डायगोनल क्रिएट किया है, दिस इज नथिंग बट दिस हेलिकल पाथ जो कर्व्ड दिख रहा है उस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस पर. बट इन रियलिटी व्हेन दिस सिलेंडर इज अनफोल्डेड एंड कन्वर्टेड इनटू एज रेक्टेंगुलर शीट, दिस इज अ डायगोनल, राइट. और अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो मुझे डायमीटर इस ऑब्जेक्ट का दिया गया था 5 सेंटीमीटर. सो वी आर टोल्ड कि ये लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है. अगर डायमीटर हमें पता है तो कैन वी से ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी विच शुड बी 2 पाई आर. पाई को पाई ही रखते हैं, डायमीटर 5 है तो 2r should be 5, so this length should be 5 pi. What length I'm talking about? This length should be 5 pi. I hope you are able to process this data. Now, बहुत ध्यान से सुनेंगे. आगे एक और चीज कही गई है that it reaches this point y which is vertically below point x. तो ये x पॉइंट के एग्जैक्ट अपोजिट है, तो ये हमेशा ऐसा डायगोनल ही क्रिएट होगा. आप प्लीज याद रखिए, with the help of the conditions given to us, हमेशा ये ऐसा ही शेप क्रिएट होगा. That's really good, Akashnil. That's brilliant. Now, what are we asked in this question? That x goes around the object and reaches point y, which is vertically point x as shown in the figure. How much distance did the ant walk? तो ये हेलिकल पाथ की लेंथ कितनी है? अगर मैं सीधा सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करूँ तो डू वी नो इसकी हाइट जो दी गई थी वो 5 थी, जो रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ है. और रेक्टेंगुलर शीट है तो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. और अगर ये 90 डिग्री है तो इस रेक्टेंगल की जो टोटल लेंथ है, जो बेस है वो 5 पाई है, इसकी हाइट 5 है, तो इसके हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा पाइथागोरस थ्योरम से 5 पाई का स्क्वायर इज 25 पाई स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर इज 25, विच आई थिंक यू आर गिवन इन वन ऑफ द ऑप्शन. अगर थोड़ा सा 25 को कॉमन भी लें, आई डोंट थिंक यू हैव टू टेक इट एज कॉमन, तो ऑप्शन ए शुड बी मार्क्ड करेक्टली. आई होप दैट पार्ट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स. This is also one of the interesting questions. What are we told in this question? That this ball is rolled from this point. I'm just decreasing the size of this sheet. I hope it's visible. So when this ball basically is rolled from this height, what happens? वो पूछ रहा है कि ये बॉल किस पॉइंट पे P, Q, R इसमें से कौन से पॉइंट पर रेस्ट पोजीशन में आएगी. S का मतलब है वो रोल करती ही चली जाएगी. आई होप बहुत बेसिक सा नॉलेज है, बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप थोड़ा सा माइंडफुली ऑब्जर्व करें, ऑल्दो दिस इज अ लिटिल एम्बिग्यूअस, लिटिल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखें तो ये जो कर्व पार्ट है, इस कर्व पार्ट का ये जो कर्वेचर ये कुछ ऐसा सा है. तो इस वजह से ये बॉल जब रोल होके आएगी ना, तो ये बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू pass this barrier in this direction. So that's the problem here, and that's why the ball will come back again on this curve, और वो इसी कर्व पे ऑस्किलेट होके यहीं P पर ठहर जाएगी. That should be the answer to this question. With that, when you proceed further, I am supposed to discuss these few topics. Let me see कितने हम topics कर पाते हैं. See, हम clocks and calendar से शुरू करेंगे. बहुत जल्दी से आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करिए क्योंकि इन पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Okay, Raghav, that's good, Bhumika. Good everyone. Those who have joined us quite late, I request all the participants to watch the recording because there were certain questions which have not been discussed in the year-long program. So you all should be watching these solutions, which were some questions which we haven't discussed so far in this year-long program. Now, if I start discussing clocks, calendar की I hope हम discussion थोड़ी सी देर के बाद करेंगे, but अगर आप clock को discuss करें तो clock बहुत ही basic सी भी चीज़ है. मैं बहुत टेक्निकल से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बना, चूंकि ये रिवीजन है तो मैं सीधे सीधे आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बताऊंगा जिन्हें आप एग्जाम में सीधे सीधे यूज करेंगे. इन केस इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, आप खुद से अपनी एक वॉल पर हैंग क्लॉक को यूज करिए और उसमें जो भी मैं प्रिंसिपल्स या प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ वो यूज करके अप्लाई करके देखिए, वो सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज फॉलो होंगी. एक सिंपल सी मैं एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा हूँ विच बेसिकली हैज द मिनट हैंड एंड द आवर एंड. वी आर सिंपली नेग्लेक्टिंग, रिजेक्टिंग और अवॉइडिंग दिस सेकेंड हैंड. सो अगर हम दो हैंड्स की बात करें, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो आई होप यू नो
this 12-hour clock gets divided into 12 equal parts. How do we do that? This is 12, 6, 9, 3. Then these regions are divided into two equal parts. This region is also divided into two equal parts. This region also gets divided into two equal parts, and that region also we divide into two equal parts. Continuing further, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग. I hope you know, again, as we have been discussing it a lot many times, ये जो पूरा सर्कुलर ट्रैक होता है, जो मिनट हैंड 1 घंटे में या आर हैंड पूरे 12 आवर्स में यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ट्रेस करता है, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज एंगुलर डिस्टेंस इज 360 डिग्री. तो मिनट हैंड जब वो पूरे 12 ब्लॉक्स को यूज करता है या पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो मिनट हैंड एंगल्स के टर्म्स में 360 डिग्री रोटेट होता है. तो ये वही बात है जो अभी हमने एक डायल का क्वेश्चन करते वक्त डिस्कस की थी, कि अगर मैंने इस सर्कुलर पाथ को, इस वॉच को या इस क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 360 by 12 वुड बी द एंगुलर लेंथ ऑफ दिस 5 मिनट का टाइम या 1 घंटे का टाइम. आर एंड के परस्पेक्टिव से देखें तो दिस इज 1 आवर का लेंथ, एंगुलर लेंथ, और अगर मिनट हैंड के परस्पेक्टिव से देखें तो 5 मिनट की लेंथ है. आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस दैट. विद दैट अगर आप ध्यान से निकालना चाहें तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 30 डिग्री. सो हर आर्क की जो लेंथ होती है एक एक ब्लॉक की, जो हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, that is clearly of 30 degrees. This is not 300, this is 30 degrees, everyone. Now, when you proceed further, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग. I hope I need not tell you that minute hand और R hand की मैं speeds corresponding relative speed की बात करूँ तो minute hand being faster one, आर एंड से हमेशा आगे निकल जाएगा और वो हमेशा वापस आर एंड को फॉलो या कैच या उसको ओवरलैप करेगा. तो 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है जो अब मैं कहने वाला हूँ, तो आप अपनी क्लॉक हाथ में लेकर उसे रोटेट या रिवॉल्व करके देख सकते हैं. आपको ये सारी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी जो मैं कहने जा रहा हूँ. अगर आप एक 12 आवर क्लॉक को देखें, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू लुक एट अ 12 आवर क्लॉक, और 12 आवर क्लॉक पे अगर आप 12 आवर का पूरा रोटेशन देखें मिनट हैंड और आर हैंड का, तो हर घंटे, एवरी आवर, ईच आवर, द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ओवरलैप ईच अदर. अगर आप 12 o'clock पे देखें तो 12 o'clock में मिनट हैंड और आर हैंड ओवरलैप करते हैं. अगर आप 2:10 या 11 मिनट पर देखें, इफ यू लुक एट, आई एम रियली सॉरी व्हाट इज हैपनिंग विद दिस स्क्रीन. सी, अगर आप 2 बज के, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस स्क्रीन, का एक सेकेंड दीजिएगा, आई थिंक इट इज स्क्रॉलिंग बाय इटसेल्फ. ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ बटन व्हिच आई बिलीव हैव प्रेस्ड. एक सेकेंड, I will be reopening this window, so just give me a second everyone. I will be reopening this window in a while. This software has, I believe, a certain problem. I am reopening this window, online students, so I request you all to stay there. I will restart this particular part in a while, so stay there everyone. Okay, so I believe we are back with this particular part, and I hope this screen which has been shared with you is properly visible to all the participants. है ना? जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्लास. Well, the only point I was trying to make you understand was this, that अगर आप ध्यान से देखें, so this R and the minute hand overlap each other हर घंटे एक बार. One exception is here कि 12 o'clock, मतलब 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में जब आप देखें, तो R hand और minute hand एक ही बार ओवरलैप करेंगे. जब वो 11 o'clock से 12 o'clock में के बीच में ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो ओवरलैप करते करते 12 o'clock स्ट्राइक्स. सिमिलरली 12 o'clock से 1 o'clock के बीच में इट विल नॉट हैपन, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिनट हैंड तेज चलता है, वो आगे निकल जाएगा, और जैसे ही मिनट हैंड आर एंड को ओवरलैप करने वाला होगा, एक बच जाएंगे. सो द पॉइंट इज, ओवरलैपिंग हर घंटे एक बार होती है. द ओनली एक्सेप्शन हियर इज बिटवीन 11 and 1 द ओवरलैपिंग हैपन्स ओनली वंस. सो 12 आवर की क्लॉक में द मिनट हैंड एंड द आर एंड कोइंसाइड और बेसिकली मेक अ 0 डिग्री एंगल 11 टाइम्स, बिकॉज 11 से 1 o'clock के बीच में सिर्फ एक ही बार 12 o'clock बनता है. सेम बात अगर ये 12 आवर क्लॉक में मुझसे 180 डिग्री के पर्सपेक्टिव में पूछी जाए कि 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 180 डिग्री एंगल गेट्स क्रिएटेड एग्जैक्टली अ लॉट मेनी टाइम्स एवरी आवर वंस, एक्सेप्ट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, जब आप 5 o'clock और 7 o'clock के बीच में देखेंगे, सो 180 डिग्री एंगल सिर्फ एक बार बनता है एट 6 o'clock. सो अगेन 180 डिग्री की अगर बात करें, तो दैट ऑल्सो हैपन्स 11 टाइम्स इंस्टेड ऑफ 12 टाइम्स. आई रिपीट, अगर आप 12 आवर क्लॉक में देखते हैं, तो हर घंटे एक बार 180 डिग्री और 0 डिग्री एंगल बनना चाहिए, बट 180 डिग्री 5 से 7 के बीच में 2 बार बनने के बजाय सिर्फ एक बार बनता है, और 0 डिग्री एंगल 11 से 1 के बीच बनने के बजाय सिर्फ एक ही बार बनता है. दैट्स वाई 0 डिग्री एंगल एंड 180 डिग्री एंगल गेट्स क्रिएटेड 11 टाइम्स इन अ 12 आवर क्लॉक. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. वेल, देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. अगर हमसे पूछा जाए कि 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, तो अगर आप थोड़ा सा मिनट हैंड और आर हैंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, सो दिस हैज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. ध्यान से सुनेंगे. इमेजिन दिस एट 5 इज योर आर एंड, और यहाँ कहीं दिस इज योर मिनट हैंड. आई होप ऐसा वी कैन अचीव. बेसिकली मैं ऐसा श्योरली नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होता होगा, क्योंकि वो क्लॉक है, वो उसमें आर एंड मिनट हैंड के अकॉर्डिंग
प्रोपोर्शनली चलता है, बट अगर मैं सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूँ, सो दिस इज हाउ 90 डिग्री हैपन्स इन अ between r and in minute hand. Well, basically वही थ्योरी वापस से अप्लाई करेंगे कि each r, the r and the minute hand subtend a 90 degree angle twice on each other. ये जो परपेंडिकुलर होने वाला फिनोमेना है between r and the minute hand, this happens twice between the r end and the minute hand. However, अगेन देर इज अ प्रॉब्लम कि जब आप 2 o'clock और 4 o'clock के बीच में देखेंगे, सो दिस हैपन्स नॉट 4 टाइम्स, क्योंकि 2 घंटे हैं तो 4 बार होना चाहिए लॉजिकली, बट 2 घंटे में ये सिर्फ 3 बार होता है, क्योंकि एक बार 90 डिग्री एंगल 2 से 3 के बीच बनेगा, एक बार 3 से 4 के बीच बनेगा, और एक 90 डिग्री एंगल एग्जैक्टली 3 o'clock पे बन जाता है. तो आई रिपीट, हर घंटे 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर 2 बार होते हैं, बट बिटवीन 2 and 4 ये 4 बार होने के बजाय सिर्फ 3 बार होते हैं, महज 3 बार. सेम हैपन्स बिटवीन 8 and 10. अगर आप 8 o'clock से 10 o'clock के बीच में देखें, सो 8 o'clock से 10 o'clock के बीच में 8 से 9 के बीच में एक बार 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, एक बार 90 डिग्री एंगल 9 से 10 o'clock के बीच में होता है, और एक 90 डिग्री एंगल एग्जैक्ट 9 o'clock पे होता है. विद दैट लॉजिकली 12 hour क्लॉक में हर घंटे अगर 2 बार 90 डिग्री एंगल बन रहा था तो 24 टाइम्स होना चाहिए था. However, it does not happen 2 times, so 24 minus 2, क्योंकि इन 2 hours के स्पैन में this didn't happen or take place twice. Hence, 24 minus 2, which is 22. So 90 degree angle gets created in a 12-hour clock 22 times. Well, ऐसे straight forward questions पूछ लिए जाते हैं, and that's what you're supposed to answer. एक और कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं. I'll be really glad if some of you could write it in the chat box कि अगर मुझे टाइम दिया गया है कि वॉच में कितना टाइम हो रहा है, एनालॉग क्लॉक है बेसिकली, तो मिनट हैंड और आवर इनके बीच में कितना डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा होगा. This has been taught to a lot of online students. So if you could write it in the chat box, I'll be really happy. I am wanting or expecting the formula which has straightforward formula, which although इसका logical explanation भी हो सकता है, but as we have already discussed, since it is a revision class, I would want you to write the formula जो r and minute hand के बीच में एंगल निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था. I hope you know that. So with that, I am constantly checking the chat box. जितनी जल्दी आंसर आता है, do respond. उसके अलावा क्लॉक्स में आई थिंक वी आर लेफ्ट विद नथिंग. कैलेंडर की अगर सीधी सीधी बात करें तो बहुत बेसिक सी बात याद रखिएगा. कैलेंडर कॉमन लॉजिक, कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं. बस इतना याद रखिए, हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है, और हर लीप ईयर में देर आर 365 डेज, 366 डेज, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि फरवरी इज ऑफ 29 डेज. वेल, बाकी 3 साल डेफिनेटली क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर्स, और हर नॉर्मल ईयर में देर आर 365 डेज. वेल, अलॉन्ग विद दैट आप प्लीज़ एक बात समझिए, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट थ्योरी, बट प्लीज़ इसे याद रखिए कि हर century year despite being divisible by 4 is not a leap year. I repeat, as we have discussed, every 4th year is a leap year. Indeed it is true, but every century year despite being a multiple of 4 is not a leap year, which means अगर मैं 0th year की बात करूँ, यानी beginning की बात करूँ, 4th year की बात करूँ, 8th, तो ये सारे leap year रहे होंगे. 96th year भी leap year होगा, but 100th year was not a leap year. सेम कहानी वापस 104 पे शुरू हो गई होगी, तो 96 के बाद जो अगला लीप ईयर आया होगा वो 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years इट वुड हैव हैपेंड. सेम वुड हैपन एट 108, और ऐसा चलता चला जाएगा, एंड ऐसा 196 तक चलेगा. फिर वापस 200 वुड नॉट बी अ लीप ईयर, और ऐसा वापस से 204 से शुरू होगा. हालांकि यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर. हाउएवर एवरी 4th सेंचुरी ईयर, यानी 400, 800, 1200, 1600, ये सारे सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर्स होते हैं. मतलब 200, 300, 100, 100th ईयर, 200th ईयर, 300th ईयर was not a leap year, but 400th year is going to be a leap year. Contrary to my surprise, no one in the online or chat box has written the formula for the angle between the minute and hour end. That's good. Equa, I believe, has written that the formula for evaluating the angle between minute hand and hour end is brilliant. That's good. It is clearly 11/2. Sorry, it is 1/2 times. Always remember, you don't take the absolute value, take the mod. You take the absolute difference. So आप ध्यान से सुनेंगे, आप 60h minus 11m करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे 4:50 पे मिनट हैंड और आवर हैंड कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं पूछा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप लेंगे हाफ ऑफ 60 टाइम्स h. व्हाट इज h? h इज क्लियरली 60, सो 60 टाइम्स h विच इज 4, और आप इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे. मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे, आप हमेशा इसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस विदाउट साइन कंसिडर करेंगे. माइनस 11m, m का एक वैल्यू 50 है, 50 इंटू 11 इज 550, सो दिस इज 11 इंटू 50. और ये जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा आप उसका मॉड लेके उसका हाफ कर देंगे. दैट वुड बी द एंगल बिटवीन आर एंड द मिनट हैंड. अगर आपसे एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाए, तो अगर वो छोटा एंगल आ रहा है एक्यूट, तो आप उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आर एंड और मिनट हैंड के बीच अगर ये एंगल होता है तो आई होप ये एंगल भी होता है. तो डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप निकाल लेंगे. That's brilliant, Bhumika. That's good, Abhi. That's good, Anamika. That's brilliant, Priyam. I'm glad most of you have answered correctly. With that, एक और चीज़ हम फटाफट डिस्कस करेंगे, which is called geometry. अगर आप geometry की बात करें तो बहुत ध्यान से सुनिए.
बहुत सिंपल से शेप्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। मैं शुरू करूंगा एक ट्रायंगल से। ट्रायंगल में हम बेसिक सी प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो एक बेसिक सा, अगर कोई भी हमें स्केलीन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल कुछ भी ट्रायंगल दिया है और अगर मुझे हाइट और उसका बेस पता है तो हम उस हाइट और बेस की हेल्प से उस ट्रायंगल का हमेशा एरिया निकाल सकते हैं, विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। क्वाड्रिलैटरल की बात करें तो अगर वो रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वरना डिपेंडिंग स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम है तो आई होप यू नो पैरेललोग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो अगर आपको पैरेललोग्राम में फॉर्चुनेटली हाइट दे दी गई है तो इस बेस को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम बेसिकली डायगोनल से दो सेम कॉन्ग्रुएंट इक्विलैटरल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, तो एक ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और अगर उस पर डबल कर दें, हाफ बेस इंटू हाइट का डबल कर दें तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया है उसकी कोई भी एक साइड, और जिस भी साइड पे आपने बेस कंसीडर किया है उसकी दोनों अपोजिट साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट शुड बी दी हाइट। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं एक रोम्बस की बात करूं, रोम्बस यानी सारे एंगल्स 90 हो जरूरी नहीं, बट इट बिहेव्स लाइक अ स्क्वायर कि बाकी सारी साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। उस केस में अगर मुझे डायगोनल्स दिए गए हैं सो इट इज हाफ d1 इंटू डी टू, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, वो इंटरसेक्ट करते हैं और बशर्ते 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज ट्रू फॉर अ रोम्बस। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप थोड़ी से और फॉर्मूले डिस्कस करें, आई थिंक स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल, बाकी अगर आप थोड़ा सा पिरामिड और शेप्स को देखें तो इनकी ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती है। 3D शेप्स के फॉर्मूले आई थिंक आर गिवन कंप्लीटली इन द बुकलेट, सो आई होप दोज कैन बी एड्रेस्ड एंड डन प्रॉपरली। Permutation and combination and probability के basics you can watch from the recorded lectures which are uploaded on the portal. So I believe we have had a complete discussion what we were supposed to discuss. Now I'm open to all the queries which you're supposed to ask. So this might be the final discussion we are having before this examination. So whatever concerns, whatever queries you have, feel free to write them in the chat box. I shall, or I will be really glad in explaining or answering to those queries. So we have another 10 to 15 minutes in which I shall be addressing all your doubts, queries and concerns. So straight away start asking your queries. I shall be explaining them very quickly. Some student or one student had asked me कि सर कितना सेक्शन में किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। हमने शुरू से डिस्कस किया कि ऐसा मत करिए, इतनी कैलकुलेशन मत करिए। देखो इस बात को प्लीज हमेशा याद रखिए, इट्स लाइक अ फ्लो। आप एक आर्ट को एंजॉय करते हैं व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो। सो मैथ्स या एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज एन आर्ट। जब आप उस फ्लो में आ जाते हैं, जब आप उस रिदम में आ जाते हैं तो बस बह जाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए। यस, टाइम का ट्रैक रखना जरूरी है, तो आप सिंपल से इस बात को सोचिए कि आपको बैक ऑफ द माइंड ये कंसर्न या ये थॉट रहना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन में उलझ नहीं रहे। ऑब्वियसली देर आर सर्टेन क्वेश्चन विच आर डेलिबरेटली केप्ट टू मेक यू वेस्ट योर टाइम, तो आप कोशिश करिए कि जब ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना हो तो इन्हें सेकंड या थर्ड इटरेशन में पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए, फिर सेकंड इटरेशन दीजिए, थर्ड इटरेशन दीजिए, तब इन टफ या डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन करिए। ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं डिसाइड किया जा सकता कि इतना टाइम देना चाहिए इस सेक्शन में या इस कैटेगरी के क्वेश्चन पे। तो पहले सारे आसान क्वेश्चन क्रैक या ट्रेस करिए इन 68 पूरे क्वेश्चंस। इस बार सिर्फ आप सारे क्वेश्चंस को देखिए और देखते देखते जो जो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं उन्हें सॉल्व करिए। विद दैट, जब आप वापस इन 68 क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑब्वियसली इनमें से 10, 12, 15 डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर और योर पोटेंशियल, जितने भी क्वेश्चंस आप फर्स्ट इटरेशन में कर पाएंगे आप उतने क्वेश्चंस करिए। और अगले इटरेशन में जब वापस आप बचे हुए क्वेश्चंस ट्रेस कर रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि पहली बार जब आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यू डिड अटेम्प्ट, तो अब क्वेश्चन को पढ़ने या समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, या रादर इनको वापस पढ़ते वक्त आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी जो आप वहां पे दिखा रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे। Third thing, it has been observed that despite being amazingly, potential, or you all are having excellent caliber, you have great potential, which I have seen throughout these classes or in this year-long program or in these crash courses which we had run. You all have excellent logical reasoning and creative skills. The only concern I have is most of the times you panic or you choke, and when you panic or choke, you stop solving questions. So don't panic, don't choke. Obviously आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो आप नेचुरली पैनिक होंगे, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, नई जगह, नया माहौल, नया एटमॉस्फेयर, नया सिस्टम जहाँ पे आप सब कुछ अलग नई चीज़ों से गुजर रहे होंगे। सो ऑब्वियसली ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा पैनिक को कम करिए। कभी भी ऐसा लग रहा है दैट यू आर पैनिकिंग, आपको रियलाइज भी नहीं होगा एंड यू विल स्टार्ट पैनिकिंग एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाएंगे। डिस्पाइट कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आता है, आपके अंदर वो नॉलेज है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जरूरी है फिर भी इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस, आप सिंपली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होइए, 10 या 15 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और वाटर दीजिए एंड देन अगेन रिज्यूम विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं होंगे, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ हो जाएंगे, सो अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन योर कैलिबर। आपने जितनी भी सिंसियरिटी के साथ जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैलिबर या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बस ऑप्टिमल स्कोर लेकर आना है। ऑब्वियसली अपनी
सिंसियरिटी, अपने हार्डवर्क या अपने टैलेंट से ज़्यादा आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे। बस जितना आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो सर्कमस्टांसेस में, वो आपको अपना निकालना है। आई एम रीडिंग सम मोर क्वेरी। संयम जैन इज राइटिंग, सर इज इट आर कॉल टू डिवाइड द, यस। आप पार्ट ए पार्ट बी नहीं, पार्ट ए और पार्ट बी में मेरे ख्याल से जितना मेरा नॉलेज अलाउ करता है, पार्ट ए को अटेंड करने के लिए आपको 2.5 घंटे 2.5 आवर्स दिए जाएंगे, और फिर पार्ट बी के लिए रिजर्व हाफ एन आवर दिया जाएगा। तो शायद पार्ट बी आप तभी अटेंड कर पाएंगे जब पार्ट ए सबमिट करने। तो गलती से इतनी समझदारी कोई भी ना दिखाए कि पार्ट ए पहले करने के बजाय पार्ट बी कर ले, ये सोच कर कि मेरी ड्राइंग अच्छी है पहले ड्राइंग कर लेता हूँ। अगर आपने पार्ट ए को सबमिट किया मेरे ख्याल से शायद, तो आप पार्ट बी को ओपन तो जरूर कर लेंगे लेकिन पार्ट ए पर वापस नहीं आ पाएंगे। सो डोंट कमिट दैट एरर। और हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन से अच्छा है इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, डायरेक्शंस पढ़िए। यू ऑल आर वेल ग्रोन अप्स, यू ऑल आर एडल्ट्स। तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ते, कॉम्प्रहेंड करते, इंटरप्रेट करते, लैंग्वेज को आता है। एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉम्प्रहेंडिंग, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। आई होप you all are quite good at that, right? Chinmay is asking, sir, could you explain that sum from UC 2001, 13 houses in a row, virus spreads from left to right? That's brilliant, Chinmay. That is a question we had discussed a lot many times. उस समय Chinmay, to be very honest, उस क्वेश्चन में जो डेटा या वायरस के स्प्रेड होने का लॉजिक दिया गया है ना, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, IITs being fond of Fibonacci series, वहाँ पे एक Fibonacci series वाला पैटर्न फॉलो करता है। They are quite in love with this series. तो Fibonacci series में नंबर्स ऐसे आते हैं, शुरू के 2 नंबर्स फिक्स होते हैं 0 and 1, एंड द नेक्स्ट नंबर यू रिसीव बाय एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर्स। यानी अगर आप 0 and 1 को ऐड करेंगे तो विल गेट 1, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 = 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 = 3, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 = 5। सो दिस इज हाउ आप फिगर आउट करेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया गया था चेन्नई कि फर्स्ट हाउस में स्प्रेड होने का 0 तरीका, फिर जो सेकंड हाउस था वहाँ पे एक तरीके से वायरस कुड स्प्रेड, सेकंड हाउस में अगेन, थर्ड हाउस में इट वाज अनदर वन वे, और ऐसे करते करते हर करस्पॉन्डिंग हाउस में ये नंबर्स फिबोनाची सीरीज वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। और पूछा गया था कि 13th हाउस में कितने तरीकों से वायरस कैन स्प्रेड। तो वो फिबोनाची सीरीज का जो 13th नंबर होता है वो आपको फिगर आउट करना था, वो आप आसानी से इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। दैट वाज द लॉजिक। इट्स लाइक मैजिशियन जब आपको कुछ मैजिक दिखा रहा होता है तो बैकग्राउंड में कहीं कुछ और चल रहा होता है, बट मैजिक आपको डिस्ट्रैक्ट या डाइवर्ट करके रखता है। वो कहीं कुछ और कर रहा होता है जो आप देख रहे होते हैं, बट बैकग्राउंड में जादू कहीं और चल रहा होता है। UCEED बिलीव्स इन दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। वो आपको इल्यूजन में डालते हैं, दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू थ्रू द डेटा, और आप मेन पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो स्टे फोकस्ड, कोशिश करिए, लुक फॉर अ पैटर्न। क्वेश्चन आसान है, बस उन्हें कॉम्प्लिकेट बनाया जाएगा so that you are not able to interpret or understand the language properly. यकीन करिए, you all have faith, you all have potential or caliber to crack all the questions. But उन 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 के बीच में बेस्ट अप्रोच वुड बी, मतलब मैं ये पास्ट ईयर्स के पैटर्न्स को देख रहा हूँ। इस साल अगर पेपर टफ आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली कम हो जाएंगे, पेपर इजी आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। दिस टोटली डिपेंड्स पेपर का लेवल कैसा है, बट कोशिश करिए कि 35 से 40 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करिए। पहले इटरेशन में 10-12 क्वेश्चन, अगले इटरेशन में फॉर्चुनेटली आप 12 से ज़्यादा 15 क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो जब भी 10, 12 या 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप 30 का मार्क टच कर देते हैं। फिर थोड़ा 1 आध घंटा और बचा होगा मेरे ख्याल से आपके पास, और इस इटरेशन में आप सारे टफ क्वेश्चंस करिए जो सी कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे। This is how you're supposed to solve this. So Sajal is saying yes sir, time division is fixed. No Sajal, don't do that. अब सारे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट करिए, डोंट डू दैट कि आप अलग अलग कैटेगराइज करिए। Akash Neil is asking, thank you sir for this crash course. Yes Akash Neil, I'm also very glad that I got this opportunity, that I could teach students like you. So I'm really glad to be your teacher, everyone. This should be taken as a compliment by all the students whom I have taught during the year-long program and during the crash course and during this YouTube live. This has been a really good journey. Meera Tripathi is saying how much marks to get in top 15 rank. Meera, this cannot be said. It depends. It varies accordingly. बस कोशिश करिए मीरा कि आप अपना ऑप्टिमल बेस्ट परफॉर्म करिए। ऐसा नहीं डिसाइड करके जाया जा सकता कितने क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करने। डोंट हैव दैट फिगर ऑन योर टॉप कि इतने, मतलब इट्स लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, डोंट हैव दिस अजम्पशन कि मैं इतने रन्स मार कर ही आऊंगा। जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। अगर पिच ऑब्वियसली अगर बेहतरीन है तो यू शुड रिस्पेक्ट द बॉलर्स, और पिच अगर लूज सी है, बॉलर्स वीक हैं, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हिट द बॉलर्स। तो ये डिपेंड करेगा, वैरी करेगा। डोंट हैव दिस नंबर फिक्स्ड। उल्टा ये एक प्रेशर या बैरियर की तरह बिहेव करेगा और आप क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दिस विल बिहेव लाइक अ बैरियर कि इतने क्वेश्चन तो करनी है और अभी तक कितने ही हुए हैं। सो डोंट टेक दैट प्रेशर, डोंट पैनिक। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऐसा किसी शायद क्रिकेटर ने कहा था, आई बिलीव वसीम जाफर या किसी ने, यू आर नॉट प्लेइंग इफ यू हैव स्कोर इन योर माइंड। सो डोंट हैव स्कोर in your mind or back of your mind. Just play your game. Just go with the flow. You will be able to solve a lot of questions. Chinmay, thank you. Sajal is saying, nahi, I meant for A and B. Okay, Sajal, that's brilliant. Harshit is saying, thank you. Gauri is saying, thank you, sir, for the crash course, clearing the concepts. I'm really glad, Gauri. So I think there is no doubts left. With that, we shall be calling or concluding this lecture live here. And I hope you have learned and enjoyed during these classes. So
Thank you so much. Take care, everyone. Have a nice day.